السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ اسلام آباد میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس، صنفی امتیاز کو یکسر مسترد کرتے ہوئے بچیوں کو حصول علم کے تمام مواقع فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ خواتین کی تعلیم اہم معاشرتی ضرورت ہے، تعلیمی وظائف دیے جائیں۔ لڑکیوں کی تعلیم یقینی بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ 2 روزہ عالمی کانفرنس کا اعلامیہ۔ لڑکیوں کی تعلیم کو قومی ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا، خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے، تعلیم تک رسائی آسان بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانا ہوں گے۔ تعلیم بنیادی حق، معاشرے کا مستقبل۔ لڑکیوں کی تعلیم میں مثمر پڑھی لکھی خواتین پائیدار اور خوشحال معاشرے کی بنیاد ہیں۔ تعلیم یافتہ مسلم خواتین نے معاشروں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پرعزم ہے۔ کانفرنس کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے جامع حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 62 ارب روپے کی منظوری، مئی تک 40,000 افراد کو قرض دینے کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ کا قرض 20 لاکھ کرنے کی تجویز کا جائزہ لینے کا حکم۔ پروگرام کے تحت 4,200 سے زائد مکانات تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن۔ اپنا گھر ہر شہری کا بنیادی حق ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ £190 ملین حکومت اور عوام کا پیسہ تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے پیسے خزانے کے بجائے کاروباری شخصیت کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے۔ پی ٹی آئی دور میں لوٹ مار عروج پر تھی۔ پی ٹی آئی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، آج بھی سازشوں میں مصروف ہے۔ ان کا بیانیہ دم توڑ چکا، عوام نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ بانی پی ٹی آئی ملک مخالف قوتوں کا اعلی کار، کیس سیاسی نہیں سنگین جرم کے ہیں۔ جھوٹ پھیلانا پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ جھوٹے یوٹیوبرز اور بانی پی ٹی آئی ملک کے لیے خطرناک ہیں، انہیں ملک دشمنوں سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین۔ پی ٹی آئی نے لوٹ مار کے کیس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی۔ £190 ملین کیس میں سزا سے بچنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے۔ چوری چھپانے کے لیے القادر ٹرسٹ بنایا گیا۔ پی ٹی آئی دور میں کک بیکس لی گئیں، ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے نام پر پیسے وصول کیے جاتے رہے۔ بانی پی ٹی آئی کو حساب دینا ہوگا، این آر او نہیں ملے گا، لوٹے پیسے واپس کرنا ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر طلال چوہدری۔ £190 ملین اوپن اینڈ شٹ کیس، بانی پی ٹی آئی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ تحریک انصاف کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ 9 مئی کو ریاست اور ریاستی اداروں کو پامال کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو غنڈہ گردی اور دھرنوں سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ملک سیاسی اور معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی۔ سینیٹر فیصل واٹا کی نیوز کانفرنس۔ مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر۔ کانفرنس میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے راستوں کے تعین کا موقع ملا۔ دنیا کو پیغام جانا چاہیے کہ مسلمان معاشرے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد اعلامیہ لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ میں کلیدی ثابت ہوگا۔ سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علی صاحب۔ لڑکیوں کی تعلیم میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ حکومت لڑکیوں کی معیاری تعلیم تک رسائی یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ لڑکیوں کو بااختیار بنانے، خوشحالی، ترقی اور بہبود میں تعلیم کا اہم کردار ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اساتذہ کی تربیت، نئے اسکولوں کی تعمیر اور طالبات کو وظائف کی فراہمی جیسے اقدامات پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی۔ اسکول جانا ہر لڑکی کا حق۔ اسلامی تعلیمات میں تعلیم کی اہمیت پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل نے پورا تعلیمی نظام تباہ کر دیا۔ ایک دہائی سے طالبان نے خواتین سے تعلیم کا حق چھین رکھا ہے۔ خواتین کے حقوق غصب کرنے کے لیے 100 سے زائد قوانین بنائے۔ طالبان کے جرائم کو ثقافتی اور مذہبی جواز کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی۔
سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم. شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر کارروائیاں. 9 خارجی جہنم واصل، 2 زخمی، 2 گرفتار. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. دہشت گردی کے افریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. قوم بہادر سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر اعظم اور صدر مملکت کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. پاکستان کا قائم مقام افغان وزیر خارجہ کے بے بنیاد الزامات پر سخت رد عمل. من گھڑت اور جھوٹے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں. افغانستان میں ٹی ٹی پی اور القاعدہ سمیت 2 درجن سے زائد دہشت گرد گروپ کا کام کر رہے ہیں. افغان حکام دہشت گردی کی نیٹ ورک ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں. اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف. غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری. مزید 24 فلسطینی شہید، 89 زخمی. برج اور نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری. شہداء کی مجموعی تعداد 46,565 ہو گئی. مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں. متعدد فلسطینی گرفتار. بیت حنون میں ایک حملے میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے. مودی کے دورہ مقبوضہ کشمیر سے قبل پابندیاں مزید سخت. معمولات زندگی درہم برہم. محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز. بارہمولہ میں 3 بے گناہ نوجوان کالے قوانین کے تحت گرفتار. کل جماعتی حریت کانفرنس کی وحشیانہ کارروائیوں کی شدید مذمت. عالمی تنظیمیں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لیں. حریت قیادت. لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آتش زدگی پر قابو نہ پایا جا سکا. ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی. 12,000 مکان راکھ کا ڈھیر. 2 لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی. طیارے، ہیلی کاپٹرز اور فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف. تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا. متاثرہ علاقوں میں رات کا کرفیو نافذ. قائد اعظم ٹرافی کی چیمپئن ٹیم سیالکوٹ ریجن کے اعزاز میں تقریب. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے فاتح ٹیم کے لیے 75 لاکھ روپے کا اعلان. بزنس کمیونٹی ساتھ دے تو پی سی بی بین الاقوامی معیار کا اسٹیڈیم تعمیر کر سکتا ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 پلیئرز کی ڈرافٹنگ کل لاہور میں ہوگی. نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن سمیت 44 بین الاقوامی کرکٹرز کی پلاٹینم کیٹیگری میں رجسٹریشن. آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر، نیوزی لینڈ کے ٹیم سعودی، ویسٹ انڈیز کے جیسن ہولڈر اور جنوبی افریقہ کے راسی وینڈرڈوسن بھی شامل. سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ الہلال کے لروبا کے خلاف 5-0 سے کامیابی. مارکس لیونارڈو کے 2 گول. لیگ ٹیبل پر الہلال 37 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست. It's opened up here, it's Lodi! It's brilliant, Al Hilal! Malcolm, that's a lovely ball, it's Cancelo! And it's off the bar from Marcus Leonardo! And then a brilliant save makes it 4. All of a sudden they're having a dream start. اور خطروں کے کھلاڑی اسٹونیا کے جان روز کا انوکھا کارنامہ. دبئی میں 2 ٹاورز کے درمیان بندھی باریک پٹی نما رسی پر واک. جان روز نے 224 میٹر کی بلندی پر 100 میٹر طویل ہائی لائن عبور کی. 32 سالہ کھلاڑی نے تیز ہوا کا مقابلہ کرتے ہوئے بہترین توازن کا مظاہرہ کیا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ. کسی خاتون کو ہراساں کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے. مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں قابل احترام.
عزت اختیار برابری و مساوات ہمارا پیغام. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر حکومت پنجاب خواتین کے تحفظ اور حقوق کی پاسداری کے لیے پرعزم. تاریخ میں پہلی بار ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کا قیام. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں تحفظ کے لیے پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول. ویمن سیفٹی ایپ، پولیس پروٹیکشن ایپ، ورچوئل پولیس اسٹیشن اور دیگر اقدامات. جینڈر بیسڈ وائلنس کی ٹریکنگ سسٹم کا آغاز. جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ. ایک بااختیار عورت، ترقی و خوشحالی کا نشان. بناؤ مضبوط پنجاب، خوشحال پاکستان. حکومت پنجاب. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے اشتراک سے پرائم منسٹر اسپیشل پیکیج بیچ 2 کا آغاز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ویژن کے مطابق پرائم منسٹر اسپیشل پیکیج پر آئے ہنرمند افرادی قوت کی تیاری. انفارمیشن ٹیکنالوجی، بینکنگ اینڈ فائنانس، مینوفیکچرنگ اینڈ ٹیکسٹائل، ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم، اسٹیٹکس، ہیلتھ کیئر اینڈ سروسز، الیکٹریکل انرجی اینڈ کنسٹرکشن جیسے شعبوں میں مفت کورسز کا آغاز. اس کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کے لیے فورن لینگویج کورسز اور انٹرنیشنل سرٹیفکیٹس کا اجرا. آج ہی اپنی مرضی کے کورسز میں داخلہ لیں اور اندرون و بیرون ملک پرکشش روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں. داخلے کی آخری تاریخ 25 جنوری 2025. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں. ہمارا عزم استحکام، ہنرمند نوجوان، روشن پاکستان. کسی خاتون کو ہراساں کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے. مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں قابل احترام. عزت اختیار برابری و مساوات ہمارا پیغام. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر حکومت پنجاب خواتین کے تحفظ اور حقوق کی پاسداری کے لیے پرعزم. تاریخ میں پہلی بار ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کا قیام. کسی بھی ہنگامی صورتحال میں تحفظ کے لیے پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول. ویمن سیفٹی ایپ، پولیس پروٹیکشن ایپ، ورچوئل پولیس اسٹیشن اور دیگر اقدامات. جینڈر بیسڈ وائلنس کی ٹریکنگ سسٹم کا آغاز. جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ. ایک بااختیار عورت، ترقی و خوشحالی کا نشان. بناؤ مضبوط پنجاب، خوشحال پاکستان. حکومت پنجاب. درست ہر وقت بر وقت. بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید. سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلام آباد میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس میں صنفی امتیاز کو یکسر مسترد کرتے ہوئے بچیوں کو حصول علم کے تمام مواقع فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. تعلیم تک رسائی آسان بنانے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ہوں گی. لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا تاریخی اسلام آباد اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس کی تفصیل بتائیں گی صدف افضل اپنی رپورٹ میں. لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے 2 روزہ عالمی کانفرنس وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کی سرپرستی میں اسلام آباد میں ہوئی. 16 نکاتی اسلام آباد اعلامیہ کے مطابق لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہونے والی کانفرنس کے انعقاد کو سراہا گیا. اسلامی تعلیمات میں بھی لڑکیوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، جبکہ لڑکیوں کی تعلیم کو قومی ترجیحات میں شامل کرنے پر زور دیا گیا. یہ بہت پازیٹیو ہے. آئی ہوپ آگے جا کے جو ڈیکلریشن اس کا ریزلٹ میں سائن ہوئی ہے اس پہ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوگی، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائی کے مواقع دیں، انکلوسیو ایکویٹیبل ایجوکیشن دے، تاکہ وہ اب جو سائنس ہو جائے، پالیٹکس ہو جائے، لیڈرشپ رولز ہوں، اس میں زیادہ سے زیادہ نظر آئیں. اسلام آباد اعلامیہ میں تعلیمی مواقع کی فراہمی کے لیے وظائف میں اضافے کی تجویز دی گئی. لڑکیوں کے تعلیمی حق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. کانفرنس میں مسلم دنیا کے سرکاری اور نجی میڈیا اداروں پر لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت اور شعور اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرام شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا. کانفرنس میں عزم کیا گیا کہ مذہبی پلیٹ فارمز اور دینی اجتماعات کے ذریعے یہ پیغام دیا جائے کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے اور اس سلسلے میں منفی سوچ کی حوصلہ شکنی کی کوشش کی جائے. یہ سب اسلامی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم نے سولوشنز اس کے ڈھونڈے ہیں. وے فارورڈ کیا ہوگا اس کے لیے ہمارے سب کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ڈسکشن کی ہے، اور یہ ایک بہت ہی سکسیزفل ایونٹ اباؤٹ گرلز ایجوکیشن تھا. This is a very important initiative. I was very pleased to see the dedication of everybody involved into this conference to advance the education of girls.
एलामिया में राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की तरफ से पेश किए गए बैनुल-अक़वामी शराकतदारी के वसी प्लेटफॉर्म के इक़दाम की तारीफ की गई। सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी को कॉन्फ्रेंस की तमाम करारदादों को आगे बढ़ाने और उन पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सौंपी गई। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान 14 मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। मुआहदे लड़कियों की तालीम के फरोग में कलीदी किरदार अदा करेंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तान का कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने और लड़कियों की तालीम के लिए इनकलाबी कदम उठाने पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क में 5 से 16 साल तक की उम्र की तकरीबन 13 मिलियन से जायद बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं। ये तारीखी आलमी कॉन्फ्रेंस उन बच्चियों को स्कूलों तक लाने में अहम किरदार अदा करेगी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तालीम बुनियादी हक है, माशरे का मुस्तकबिल लड़कियों की तालीम में मुज़मर है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तालीम के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब में कहा कि पढ़ी लिखी ख़वातीन पायदार और खुशहाल माशरे की बुनियाद हैं। तफसील नमरा सुहेल से। इस्लामाबाद में आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और बेहतर मुस्तकबिल के लिए तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि तारीखी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात लड़कियों की तालीम के लिए पॉलिसी साजी में अहम साबित होंगी। The valuable insights we have shared over the last 2 days, the plans of action we have finalized and the partnerships we have forged would be pivotal to realizing a future where education becomes a fundamental right for every girl, free from barriers and limitations. राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि लड़कियों के लिए तालीम के हवाले से कॉन्फ्रेंस से बहुत से रास्तों का तयन करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के खिलाफ लड़कियों की तालीम के हवाले से प्रोपेगेंडे में कोई हकीकत नहीं। We are committed in the Muslim World League, along with our partners, to make the Islamabad Declaration an international charter through the stance of the scholars in warding off the opinions which has reservations towards girls' education, which are falsely attributed to Islam. वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में तालीम का सबसे अहम किरदार है। We recognize that the education is the key factor for the girls' empowerment, prosperity, development, and welfare. I am deeply committed to ensuring that every child in Pakistan has access to the quality education. फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रज़ा फारूक ने कहा कि हुकूमत स्कूल से बाहर बच्चियों को वापस लाने के लिए दिन रात कोशां है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर लड़की के लिए मयारी तालीम की रसाई मुमकिन बनाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हर लड़की को तालीम के हक की रसाई हासिल हो ताकि हर लड़की तालीम हासिल करके अपना ख्वाब पूरा कर सके। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज ने मई तक 40,000 दरखास्त गुजारों को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कर्ज देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और कर्ज 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला को बताया गया कि सूबे भर में तकरीबन 5,000 शहरी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोन ले चुके हैं। प्रोग्राम के तहत 4,200 से ज़ायद मकान तेज़ी से तकमील की जानिब गामज़न हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि PTI क़यादत ने हमेशा मुल्की मफादात पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी। आज भी PTI मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है, ताहम अवाम ने PTI की इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि PTI सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ मजमूम मुहिम चला रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI अमरीकी हिमायत के लिए मिन्नत समाजत कर रही है। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड कौम की अमानत थे जो हुकूमती खजाने के बजाय मलिक रियाज के अकाउंट में जमा करवाए गए। वज़ीर दिफा ने कहा कि वो मुज़ाकरात के हक में है, ताहम PTI संजीदा नहीं। 190 मिलियन पाउंड जो सरकार के पैसे थे, पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे, वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो ब्रिटेन की है उसने पाकिस्तानी हुकूमत को भिजवाए। 190 मिलियन पाउंड जो है ना वो बैरिया टाउन या मलिक रियाज साहब के अकाउंट में जमा करा दिया गया। उनका जो जुर्माना था उसको रिड्यूस किया गया। ये सारे हक़ाइक़ हैं जिनके ऊपर अदालत ने कल फैसला देना है या उम्मीद की जाती है कि फ़ैसला आएगा।
तो ये इनके तमाम तर 3 हमले, उससे पहले 9 मई, उसके पहले ये सारे के सारे अल्लाह के फजल से नाकाम हुए हैं और इनका एहतसाब जो है जारी रहेगा। मैं पहले दिन से मुज़ाकरात के हक़ में हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं उनकी ऑनेस्टी पे या उनकी सिंसेरिटी पे डाउट करता हूँ कि वो मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात के लिए। सनत पैदावार के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने पाकिस्तान और उसके इदारों के खिलाफ साजिश की। बानी पीटीआई पर जेल में 55 करोड़ रुपए से जायद खर्च आ चुका है। जेल में दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट और बादाम खाकर भी झूठ फैलाना पीटीआई का वतीरा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने सी पैक रोल बैक किया, चीन के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। कुछ नाम नेहाद यूट्यूबर्स इंडियन रॉ और यहूदियों के एजेंट हैं जिनसे वो फंडिंग लेते हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर कौमी असम्बली के मुज़ाकरात के हवाले से ऑब्जर्वेशन जारी कर दी हैं। तर्जमान के मुताबिक फ्रीकैन में तलखियां और सियासी कशीदगी के खात्मे में स्पीकर सरदार अय्याज सादिक का कलीदी किरदार रहा है। उन्होंने मुतादिद मौक़े पर हुकूमत और अपोजिशन को तामीरी और मस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। अय्याज सादिक ने गुज़श्ता अजलास में बाकायदा रूलिंग के जरिए स्पीकर ऑफिस के दरवाजे तमाम अराकीन के खोलने का ऐलान किया। हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन को वक्त देने की न सिर्फ बात की बल्कि उस पर अमल भी किया। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर अब भी खुलूस नीयत से मुज़ाकरात में सहूलत कारी कर रहे हैं। ये स्पीकर की ही कामयाबी है कि एक दूसरे से हाथ ना मिलाने वाले आज एक मेज पर बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई ने लूट मार के केस को सियासी बनाने की कोशिश की। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा से बचने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई दौर में किकबैक्स वसूल करके माल बनाया जाता रहा। लूटे गए पैसे वापस करना होंगे और लूट मार का हिसाब देना होगा। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग्स के पैसे हो, एनओसी के लिए हीरे की अंगूठियां हो, तोशा खाना के हार हो, या फिर ये अल कादर ट्रस्ट, ये सब कुछ क्यों होता रहा? क्योंकि उस वक्त के वजीर आजम की पूरी ताकत बुशरा बीबी के पास थी और बुशरा बीबी अपने खावंद से मिलकर ये तमाम डकैती, चोरी, कमीशन, किकबैक्स लेती थी, जिसका इल्म मुकम्मल तौर पर बानी पीटीआई को होता था। इसी वजह से बुजदार लगाया गया। सेनेटर फैसल वाटा ने कहा है कि बानी पीटीआई ने रियासत की तंसीबात को आग लगाई, मनफी सियासत पर बज़िद रहे और अब माफी की कोशिश कर रहे हैं। वो कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तफसील से ये जहांगीर से जानिए। कराची प्रेस क्लब पर न्यूज कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि बानी पीटीआई को समझाया था कि आप कानून को हाथ में न लें, कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। तहम उन्होंने मेरी किसी बात पर कान ना धरे। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का केस बानी पीटीआई की करतूतों का नतीजा है। मैं उनको बार बार आप लोगों के सामने 2.5 साल पहले नहीं, 3.5 साल 4 साल पहले जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। उस वक्त वो नहीं माने। उसके बाद भी मैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है। ठीक है जी, अब इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर ले, और जुर्म की सज़ा होती है। जुर्म आप करेंगे, कत्ल करेंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आपको सज़ा होगी। अब आपसे किसी ने करवाया, आपकी फैमिली में किसी ने उसका फ़ायदा उठाया, आपके दोस्त अहबाब ने उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया, ये तो कोई नहीं मानेगा ना। साइन तो आपने किए। उन्होंने कहा कि SIFC प्लेटफॉर्म के जरिए हमारी मईशत बेहतरी की जानिब रवा दवा है और आने वाले वक्तों में मुल्क का मुस्तकबिल शानदार होगा। उन्होंने कहा कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं, उन्हें चाहिए कि वो जज्बात और होशमंदी से काम लें और मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी ने कहा है कि हुकूमती इक़दाम से मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। हनीफ अब्बासी ने रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। बाहर बैठे पीटीआई रहनुमा मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान एक सही समत की तरफ चल पड़ा है। अगर आप देखें 38% महंगाई आज 4% पे। आज रिजर्व बढ़ रहे हैं, और ये कैसे पाकिस्तानी है जो कह रहे हैं कि बाहर से लोगों को पैसा पाकिस्तान ना भेजो। तो उन्होंने क्या किया पाकिस्तानियों ने? उन्होंने कहा अच्छा, हम इंशाल्लाह ताला इससे ज्यादा भेजेंगे। पाकिस्तानी तो वो होता है जो अपने इक़्तिदार दांव पे लगा दे,
अपनी जान दांव पे लगा दे और दुश्मन को पाकिस्तान के अंदर दाखिल ना होने दे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि एक लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी करता है, जबकि उसके चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि फितने और फितना पार्टी की मक्कारियां और अयारियां कौम बखूबी समझ चुकी है। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज अडयाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। अज़मा बुखारी ने यह भी कहा कि उसकी बहन और बीवी इसके जेल में रहने के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि इस्लाम ने तालीम के हुसूल पर खुसूसी जोर दिया है। ख़वातीन की तालीम से मुआशरे पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद अपनी रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में आलमी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के बाद शुरका के एजाज में दिए गए जोराने की तकरीब में इस्तकबालिया पेश करते हुए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तालीम का हसूल बुनियादी हक है। इस्लाम ने तालीम की अहमियत पर जोर दिया है। Education holds reverent position in Islam, with the Holy Quran's first revelation commanding us to Iqra, read. Education enables women to contribute meaningfully to their families, communities, and economies, breaking cycles of poverty and fostering progress. मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि ख़वातीन की तालीम के हवाले से तमाम मुस्लिम ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की तालीम से आइंदा नस्लों की बेहतरी वाबस्ता है। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि लड़कियों को तालीम फराहम करना किसी भी मुआशरे का बुनियादी फ़र्ज है। इस्लामाबाद में ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़कियों से तालीम का हक छीन रखा है। तफसील बता रही हैं मरियम मलिक। मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर होने वाली 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा, ख़वातीन की तालीम का मौजू मेरे दिल के करीब है। इस्लाम की असल रूह पर उसी सूरत अमल पैरा हुआ जा सकता है जब ख़वातीन को तालीम हासिल करने के यकसा मौक़े मुहैया हों। A new journey where we commit to a future for every girl to have access to complete quality education. And we make this vision a reality in our lifetime. 12.5 million Pakistani girls are out of school. I am glad that this conference is taking place here in Pakistan because there is still a tremendous amount of work that is ahead of us so that every Pakistani girl can have access to her education. मलाला यूसुफजई ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होगा अगर हम अफगान लड़कियों की तालीम की बात ना करें। 1 दहाई से तालिबान ने ख़वातीन से तालीम हासिल करने का हक छीन रखा है। In Afghanistan, an entire generation of girls is being robbed of their future because Afghanistan is the only country in the world where girls are completely banned from education beyond grade 6. The Taliban have ripped away the right to learn from every Afghan girl. They have weaponized our faith. They want to eliminate women and girls from every aspect of public life and erase them from society. गजा में इसराइली जाहिरियत का जिक्र करते हुए मलाला यूसुफजई ने कहा कि इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के साथ साथ फलस्तीनी बच्चों के तालीमी निज़ाम को भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। In Gaza, Israel has decimated the entire education system. They have bombed all universities, destroyed 90% of schools, and indiscriminately attacked civilians sheltering in school buildings. मलाला यूसुफजई ने इस बात पर जोर दिया कि अब वक्त आ गया है कि तमाम रुकावटें दूर करते हुए ख़वातीन की तालीम पर तवज्जो मरकूज की जाए। This conference and your presence today is an encouraging first step. Now is the time to raise your voice. Use your power. You can show true leadership. You can show true Islam. मलाला यूसुफजई ने कहा कि अहद हाजिर में मईशत की बेहतरी और माशरे की तरक्की के लिए ख़वातीन का किरदार नागुज़ीर है। अगर लड़कियों की तालीम के लिए यकसा मौक़े फराहम किए जाएं तो तरक्की की मनाजिल की जानिब तेजी से बढ़ा जा सकता है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
اسلام آباد میں لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں اہم موضوعات پر سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے خواتین کی تعلیم تک رسائی کے لیے IT اور میڈیا کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ تفصیل ڈاکٹر ملک عمر سے۔ مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس کے آخری دن بھی اہم موضوعات زیر بحث آئے۔ اختتامی روز کے اولین سیشنز میں امن کے قیام میں خواتین کا کردار، تعلیم نسواں کے فروغ میں میڈیا کا کردار اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تعلیم نسواں کے حوالے سے سیشنز کا انعقاد ہوا۔ مقررین نے کہا کہ فیصلہ سازی میں خواتین کی شمولیت دنیا میں امن کے قیام کو مہمیز کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے فروغ میں جدید ٹیکنالوجی سے کام لینا ناگزیر ہے۔ AI allows education to become quality education through personalized education, and it allows students to be autonomous and flexible, and they can go online and read their textbooks when they have the possibility. This declaration, Islamabad Declaration, will go through the channels of the UN to be approved by the UN. So it's very, very important. Once this is passed through the UN channels, hopefully this will impact policy in all Islamic countries. جب کووڈ میں بھی ہم نے کیا دیکھا کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ ان گھرانوں میں ان بچوں کو ہوا جن کے پاس ٹیکنالوجی کی رسائی تھی۔ ہمیں انشور کرنا پڑے گا کہ انفراسٹرکچر ہم اویلیبل کریں، خاص طور پہ عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے ہاتھوں میں وہ اسمارٹ ڈیوائسز دے پائے اور انٹرنیٹ کا ایکسس دے پائے اور ان کی ڈیجیٹل لٹریسی بڑھا پائے کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں، تب ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مقررین نے کہا کہ خواتین کی تعلیم اور اس حوالے سے شعور اور آگہی کے فروغ دینے میں میڈیا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روایتی میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمیں مقصد کے حصول کے لیے سوشل میڈیا پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ میرے مذہب کو غلط انداز میں بعض اوقات اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ ایز اے بچیوں کی تعلیم کو پروہیبٹ کرنا۔ آج آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اور رابطہ عالم اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو کے اسلامک ورلڈ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ سو یہ تاثر رد کرنے میں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے یہ ایک بہت اچھا فورم ہے۔ The media has a main role in any topic, and especially for the topic of enhancing girl educations in Islamic worlds. We will be focusing in cooperation with 57 country member states on enhancing and evaluate and make it better on the soon future. مقررین نے کہا کہ اس کانفرنس کے انعقاد سے مسلم دنیا میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے حساسیت بڑھے گی اور دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ مسلم دنیا تعلیم کے فروغ میں صنفی تخصیص کی روادار نہیں۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ کسی خاتون کو ہراساں کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے۔ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں قابل احترام۔ عزت، اختیار، برابری و مساوات ہمارا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر حکومت پنجاب خواتین کے تحفظ اور حقوق کی پاسداری کے لیے پرعزم۔ تاریخ میں پہلی بار ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کا قیام۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں تحفظ کے لیے پنک بٹن سے فوری پولیس ہیلپ کا حصول۔ ویمن سیفٹی ایپ، پولیس پروٹیکشن ایپ، ورچوئل پولیس اسٹیشن اور دیگر اقدامات۔ جینڈر بیسڈ وائلنس کی ٹریکنگ سسٹم کا آغاز۔ جائے ملازمت پر ہراسگی کے خلاف قانونی تحفظ۔ ایک بااختیار عورت، ترقی و خوشحالی کا نشان۔ بناؤ مضبوط پنجاب، خوشحال پاکستان، حکومت پنجاب۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ کسی خاتون کو ہراساں کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے۔ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں قابل احترام۔
इज्जत, इख्तियार, बराबरी और मुसावात हमारा पैगाम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की पासदारी के लिए पुरअज़्म। तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम। किसी भी हंगामी सूरत हाल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, वर्चुअल पुलिस स्टेशन और दीगर इक़दामात। जेंडर बेस्ड वायलेंस की ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़। एक बाइख्तियार औरत, तरक्की और खुशहाली का निशान। बनाओ मजबूत पंजाब, खुशहाल पाकिस्तान। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। इस्लामी ताउन तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हुसैन इब्राहिम ताहा को वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद के हवाई अड्डे से रुखसत किया। राब्ते आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को भी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने रुखसत किया। इस मौके पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को यादगारी सुवेनियर और वज़ीर आज़म की जानिब से दौरे की तस्वीरी एल्बम पेश की गई। नासिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 9 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 साली के इलाके में ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों ने खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 खवारिज हलाक हुए जबकि 2 खवारिज पकड़े गए। खुफिया इत्तलात पर एक और ऑपरेशन शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके इशाम में किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 खवारिज को हलाक कर दिया जबकि 2 खवारिज जख्मी हो गए। हलाक होने वाले खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों के साथ साथ शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद किसी भी खारिजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनतुल खवारिज के खिलाफ 2 कामयाब कार्रवाइयों के दौरान फितनतुल खवारिज के 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क की सलामती के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज को खराज तहसीन पेश करती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क से फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कायम मुकाम नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास सत्तांगज़ई के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा मोहम्मद आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम में बेबुनियाद, मनगढ़ंत और झूठे इल्ज़ामात को 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अफगान नायब वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में TTP, अल-कायदा, ISKP, ETIM और IMU समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप फाल हैं। अफगानिस्तान 2024 में ISKP की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज़ भी रहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान अबूरी हुक्काम दहशतगर्दी के नेटवर्क के खात्मे और अपनी सरजमीन के दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल को रोकने के लिए आलमी इक़दामात की यकीन दहानियों पर अमल दरामद करें। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने हांगकांग में एशियन फाइनेंशियल फोरम के मौके पर सर्विस लॉन्ग मार्च की क़यादत से मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी मालियाती मंडियों में मौजूदगी को बढ़ाने और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को यकीन दिलाया कि हुकूमत ज़रूरी पॉलिसी सपोर्ट फराहम करेगी। चेयरमैन जिंग जोंगशिंग और CEO उमर सईद ने सर्विस लॉन्ग मार्च की आलमी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के मुमकिन फ़वाइद पर रोशनी डाली।
SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के जरिए मईशत में अहम पेशरफ्त हो रही है। मुसाकती कमीशन पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस 29.6 अरब रुपए की गैर मुल्की सरमायाकारी की मंजूरी दी। ये सरमायाकारी बैंकिंग, तवानाई और फार्मास्यूटिकल समेत दीगर अहम शोबों पर मुश्तमिल होगी। अरामको एशिया की जानिब से गो पेट्रोलियम में 40% हिस्से का हुसूल इक़्तिसादी सलाहियत पर एतमाद का इजहार है। डच मिस्ट्री कंपनी की जानिब से एडवांस पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस बैंक में सरमायाकारी से मालियाती शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग मुतवक्किल है। अतालवी कंपनी की फातिमा राइस मिल्स में 50% हिस्से की सरमायाकारी ज़रई शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी की नई मिसाल है। स्विट्जरलैंड की मारूफ कंपनी ने टोटल पार्को के 50% हिस्से खरीद कर तवानाई के शोबे में दिलचस्पी का इजहार किया है। सऊदी अरब की निजी कंपनी ने शेल के 77% हिस्से खरीद कर पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के कायदीन के हमरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इसराइल ने दहशतगर्दी का नक्शा जारी किया है। सऊदी अरब की तरह पूरी उम्मत मुस्लिमा इसराइल के नक्शे को मुस्तरद करती है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स ने हुज्जाज की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। एक ऐसे नक्शे को जो इसराइल ने जारी किया, जो दहशतगर्दी का नक्शा है, जो उम्मत मुस्लिमा के अहम तरीन ममालिक और बिलखुसूस अर्ज हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना और मुमलिकत सऊदी अरब के हवाले से जिसमें जसारत की गई है। हमारा सब कुछ अर्ज हरमैन शरीफैन मुमलिकत सऊदी अरब मक्का और मदीना पर कुर्बान है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस्लाम की और मुसलमानों की और उम्मत की वहदत और इत्तेहाद के लिए कोशिश करें। गजा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइली बमबारी में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद जबकि 89 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जबालिया में एक और स्कूल पर हमले में खवातीन और बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। ज़ैबुल वज़ीर स्कूल में बेघर फलस्तीनी मुकीम थे। गुज़श्ता 5 दिनों में सिहूनी फोर्सेस के हमलों में 70 बच्चे शहीद हो गए। गजा शहर पर इसराइली बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। बुरीज और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर भी जारह फौज ने शेलिंग की, जिसमें हलाकतों का खदशा है। गजा में फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 46,565 हो गई। शिमाली गजा के इलाके बेतहनून में एक हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद गुज़श्ता हफ्ते शिमाली गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई है। उधर मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। कई इलाकों से फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलूस के अतराफ में फलस्तीनियों की नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में शाम से मुतालिक खलीजी और मगरबी ममालिक के वज़राए खारिजा का इजलास हुआ। इजलास में शाम में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी, सिक्योरिटी चैलेंजेस, दमिश्क पर से बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ हटाने समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अरब ममालिक में मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इराक और कुवैत समेत दीगर ममालिक शामिल थे, जबकि तुर्किया, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों समेत अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने भी शिरकत की। शाम की नई इंतजामिया के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अशबानी ने कहा कि शाम सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उस्तवार करने का ख्वाह है। अल अरबिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार ने कहा कि अगर शाम के नए इंतजामिया अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली एक जामे हुकूमत की तश्कील के लिए इक़दाम करें तो आयद पाबंदियों को हटाने में मदद कर सकते हैं। कुछ मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के संगम को हाला के मुकाम पर अज़ीमुश्शान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कन्वेंशन का इन्नकाद किया गया। तफसील जानते हैं अदील अहमद खान से। हाला के मुकाम पर मुनक़दा कन्वेंशन से खिताब के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नज़रियाती इंतशार दुश्मन की देरीना ख्वाहिश है, मगर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नज़रिया दफ़ाए पाकिस्तान की मजबूत बुनियाद है। 4-6 लाख इंसानी जानों की कुर्बानी को मामूली बात नहीं है। वो सारी कुर्बानियां भुलाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान का साथ किसी मसलियत की बुनियाद पर नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक तारीख का रिश्ता है, जुग्राफिया का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, फिक्र का रिश्ता है, कुर्बानियों का रिश्ता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब के दौरान कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी तहरीक तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी इस नजरिए की असास है कि मकबूजा जम्मू व कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए मैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान
کہ اس नारे के साथ वाबस्ता हूं। यही हक खुद इरादियत है, इसी के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। इससे पहले धीरकोट, दुलाई और रावलपिंडी से अवाम नास रैलियों की शक्ल में कोहाला पहुंचे और कोहाला कन्वेंशन में शामिल हो गए। शुरका ने कौमी और रियासती परचम थाम रखे थे और वो पाकिस्तान के हक में भरपूर नारेबाजी करते रहे। कोहाला के इस तारीखी मकाम पर अजीमुशान कन्वेंशन का इनेकाद करके कश्मीरी अवाम ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम यकजान, दो कालिब और नाकाबिले तकसीम वहदत है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोहाला, आज़ाद कश्मीर। कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे से कबल पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पूरी वादी कश्मीर, खास तौर पर सोनामर्ग में भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। फोर्सेज एहलकारों के गश्त और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी का अमल भी तेज किया गया है। गाड़ियों की चेकिंग के लिए इजाफी चौकियां कायम की गई हैं। भारतीय फौजियों ने मकबूजा इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। बारामूला जिला में एक कार्रवाई के दौरान 3 नौजवानों को काले कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। फौजियों ने गांदरबल और डोडा जिला के कई इलाकों में भी इसी तरह की कार्रवाइयां की और घरों पर छापे मारे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में भारतीय फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों में तेजी की मजम्मत करते हुए इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में जारी इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का नोटिस ले। महाजरीन मकबूजा जम्मू कश्मीर ने मुजफ्फराबाद में एक इजलास के दौरान हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में कश्मीरियों की भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान की हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। इजलास में भारत पर जोर दिया गया कि वह मकबूजा इलाके से फौजी इनखला करे और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे। पंजाब के बेशतर और बारह हिस्से में